Good evening, everyone. In the morning, we have seen classification of proteins, different types of proteins, peptide linkages, then amide linkages, disaccharides, polysaccharides, what is C terminal, what is M terminal, everything. Okay. Now we will start with the types of proteins. Okay, depending upon the molecular shape, proteins have been classified into two types. First is called as globular protein. Second one is called as fibrous protein. Okay? Globular protein and fibrous protein. What are globular proteins? These are spherical in shape. These are spherical in shape, and this is due to the coiling of the proteins. It will be in the form of coils. Okay? Polypeptide chains are in the coiled form. Globular proteins are generally water soluble. They are generally water soluble. For example, you must have heard about insulin, ठीक है, egg albumin, ठीक है, serum albumin, legumelin, which is the protein present in the pulses. सबको पता होगा leguminous क्या बोलते हैं उसको? Leguminosae, family Leguminosae, means these are nothing but the pulses. So globular proteins are generally spherical in shape. They are showing spherical polypeptide linkages. These are generally water soluble. Examples are insulin, egg albumin, serum albumin, and legumelin, which is these are the proteins which are present in the pulses. Okay. Next, we will do over here is fibrous proteins. Now, these proteins are not spherical; these are elongated. Sorry, these are elongated rod-like structure. Okay. This shape results in the polypeptide chain parallel to each other. Means chain will be like this. They will be parallel to each other. Here it will be in the surrounded form, rounded stage. Mein. Here it is in the form of parallel. Okay? And here hydrogen bonds and disulfide bonds are responsible for the shape. So these spherical shapes are due to the hydrogen bonding, and the second one is called as disulfide bondings. ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे keratin which are present in the hair. ठीक है, proteins which are present in the hair, nails or the wools. Myosin are the proteins which are present in the muscles. So these are the fibrous things. Fur of the birds are also comes under fibrous proteins. So keratin, which are present in the hairs, nails, wool, fur, etc. Okay? And the next one is, what is the next one? Myosin. These are the proteins which are present in the muscle. Muscle se myosin. Okay? So these are present in the muscles. This is clear? So depending upon the shape, we are having two types. First one is called as globular protein. Second one is called as fibrous protein. Globular proteins are spherical in shape. Fibrous proteins are elongated rod-like structure they are showing. These are water soluble. These are generally not water soluble. Here,
These are present in the insulin, egg, albumin, serum, जो round होते हैं protein, that all are globular proteins. And what are fibrous proteins? Which are in the form of rods. And these rod-like structures are due to the presence of hydrogen bonding and disulfide linkages. Disulfide means S2. ठीक है, तो there will be SS linkage. Because of that, they are fibrous in nature. They are present in the keratin. ठीक है, keratin कहाँ पे present होता है? Hairs, nails, and wool, furs, etc. Myosin, these are the proteins which are present in the muscles. Clear? On the basis of the shape, on the basis of the shape, is it clear? Do you want to copy down this? It is given in the textbook. Do you want to copy down or should I proceed? फटाफट बोलो. मिस लिखने का है. लिखने का है, ठीक है, लिखो, फास्ट लिखो एकदम, 2 मिनट में. Ma'am, you're on mute. Sorry. Keratin is present in the hair, nails, wool, fur. Myosin is present in the muscles. ठीक है. और ये जो है प्रोटीन, इट इज प्रेजेंट इन द पल्सेस. हाँ, यस, ये सब प्रोटीन्स में ही है. टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के पैराग्राफ में लिखा हुआ है. What are the different types of proteins? So on the basis of shape, ऐसा है. और on the basis of the levels of the structure, उसके अलग टाइप हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, ऐसे अलग अलग है. तो वो हम लोग करेंगे. हाँ, पेज नंबर बताओ क्या? इट इज पेज नंबर 310. एकदम इजी है. क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन fibrous proteins and globular proteins. एक सेकेंड ना बच्चों, जरा कैमरा ऑफ होगा, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए. Okay. Once you're done with the writing part, please let me know. Done? चलो ठीक है. Now we will go for the next part. That are the shape of 1 the minute protein. show again. Okay. ये कभी कभार 3-4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन्स. हो जाएगा तो बोलो. Done, ma'am. डन. चलो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक. अभी ये जो स्ट्रक्चर वाला है ना बच्चों, इट इज वेरी बिग. तो मैं आपको पहले ऊपर से समझाती हूँ, देन आई विल शेयर माय स्क्रीन और फिर मैं वहां से रीड करके आपको समझाती हूँ. ठीक है. तो वो कैसे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है. इट इज इजी बट लिटिल बिट थ्योरेटिकल पार्ट. Next is, on the basis of the structure, proteins have been classified into 4 categories called as primary structure, secondary structure, tertiary structure, quaternary structure. ठीक है. Now the structure of the proteins are responsible for the variety of the functions in our body. For example, proteins of the hair, muscles,
skin, give shape to the structure. While enzymes are proteins which catalyze the physiological reaction. समझ रहा है? Enzymes are playing different role, and there are some proteins which are giving shapes to your structure, shapes to your proteins. These diverse function of proteins can be understood by studying 4 levels of proteins, namely primary, secondary and tertiary structure. अब ये जो primary structure है ना बच्चों, first one, that is प्राइमरी स्ट्रक्चर. ये क्या रहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर? मैंने आपको सुबह में जो पेप्टाइड लिंकेज बताया था सिंपल वाला, इट इज सेम. देखो COOH, ठीक है. फिर आप क्या लिखेंगे? CHRNH2, अगेन COOH, देन CHRNH2, अगेन COOH. जैसे सीक्वेंस में लेते जाने का, CHRNH2. What will happen बच्चों? I am going to remove the water molecule. तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, करेक्ट. यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा. तो बट ऑब्वियसली यहाँ से क्या जाएगा? H, और यहाँ से क्या जाएगा? OH. So what I am going to get over here? तो भाई बताया था C double bond O, CHRNH, C double bond O, then CHR, वापस से NH, C double bond O, then CHR, वापस से NH. आ रही है बात समझ में? तो ये जो सीक्वेंस है ना बच्चों, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन अ सीक्वेंस अल्फा अमीनो एसिड which are linked together by peptide linkage are called as primary structure of proteins. कितना इजी था मिस? ये लंबा लंबा है क्या बहुत? क्या क्या मिस ये आपने ड्रॉ किया ना वो हाँ वो मिस आगे एक्सटेंड होगा? हाँ हाँ, कितना भी ले सकते हैं, वो तो पॉलीमर बन जाएगा ना, कितना भी ले सकते हैं हम लोग. अभी मैंने खाली 3 ही ले सकती थी नेक्स्ट स्टेज में, तो मैंने 3 ही लिया. तो इट इज जस्ट अ सीक्वेंस. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स इज द सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स व्हिच आर लिंक्ड टुगेदर बाय द पेप्टाइड लिंकेज. बस, ठीक है. अभी क्या बोला है देखो, एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू रिजल्ट्स इनटू द डिफरेंट प्रोटीन्स. अगर मैंने सीक्वेंस किधर पे थोड़ा बहुत चेंज किया तो प्रोटीन भी चेंज हो जाता है, ठीक है. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज represented by writing the 3-letter symbol of the amino acid as per the sequence in the protein. एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे अभी हमने लिखा ग्लाइसिन, फिर टायरोसिन, वापस से ग्लाइसिन, फिर एलेनिन, फिर ऐसा. समझा क्या लिखा है दिवेश ने? राउंड ब्रैकेट में डाल के नीचे एन लिखेंगे तो हाँ हाँ बराबर है. करेक्ट. यू कैन राइट डाउन दिस इन द राउंड ब्रैकेट and this part we are repeating n number of times ना. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? n लिख सकते हैं. n मतलब number of ये. समझा? तो अभी इसको सीक्वेंस कैसे लिखा? ग्लाइसिन इज कंबाइनिंग विद द टायरोसिन, टायरोसिन इज कंबाइनिंग विद द ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज कंबाइनिंग विद द एलेनिन. समझा? तो ये सब क्या है बच्चों? सीक्वेंस है. इट इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड. अभी कैसे बोला है देखो, ग्लाइसिन इज कंबाइनिंग विद टायरोसिन, तो ये क्या बनाया? डाइपेप्टाइड लिंकेज. अभी मैं बनाऊंगी ग्लाइसिन प्लस एलेनिन प्लस PHE. PHE किसका था? PHE किसका था? फिनेंथ्रीन ऐसा कुछ तो था ना. तो ये क्या बनाएगा? ट्राइपेप्टाइड. समझा? So depending upon that they are showing their structure which will be always in a straight chain. समझ आ गया प्राइमरी स्ट्रक्चर? सिर्फ इतना याद रखना है कि वो एक लंबे सीक्वेंस में रहता है. They all are held together by peptide linkages. Any changes in the peptide linkages results into the formation of new proteins. ठीक है. And they're always represented with the 3 letters. यार नेम का स्टार्टिंग का 3 लेटर्स. फिनाइल एलेनिन है ये, फिनाइल एलेनिन, ठीक है. टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफन, ऐसे करके अलग अलग प्रोटीन्स हैं. इतना समझा? प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ आया सबको? पहले इतना बोलो. मैं टेक्स्ट बुक में से भी दिखाऊंगी आपको, डोंट वरी. चलो, नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, सपोज मैंने एक लाइन लिखा, विच पार्ट? See what I said primary structure, Shruti. I said that primary structure is containing the sequence of alpha amino acids which are linked together by peptide linkages. So n number of types you can form over here. So that will be your peptide linkages. Okay? And these sequences are always represented with the 3 letters. Glycine, tyrosine, glycine, alanine, like that. ठीक है? तो सिर्फ 3 अलग letters लिखने का जो इसके नाम का starting है.
and any changes in the sequence will result into the formation of new proteins. Obviously मैंने glycine लिया, बीच में tyrosine ऐड कर दिया तो नया प्रोटीन मिल गया ना मुझे. Like that you will get the different protein. This is the primary structure, just a straight chain. समझा? ठीक है, बहुत ऐसे एकदम डिफिकल्ट नहीं है, पर आप लोग को लग रहा होगा कि क्या है ये एकदम. ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना बच्चों, इट इज अ 3 dimensional अरेंजमेंट ऑफ लोकलाइज्ड रीजन ऑफ प्रोटीन चेन. ये जो प्रोटीन चेन है ना उसका भी 3D स्ट्रक्चर बनेगा. मैं उसके आपको लोगों को बाद में वीडियोस दिखाती हूँ. स्ट्रक्चर के टाइम बचेगा तो एंड में आई विल शो यू वीडियो. ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, दे आर शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH, दैट इज अमाइड का एक आएगा, एंड C डबल बॉन्ड O. इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर. क्या बोला मैंने, देखो, इट इज शोइंग, सेकेंडरी का बता रही हूँ. ठीक है, इट इज शोइंग 3 dimensional arrangement of the protein chain. Correct. They are showing hydrogen bonding between NH and CO. Correct. Now here it is further classified into 2 categories, alpha helix and beta pleated sheet like structure. Okay. Now if I'm writing here alpha helix, तो helix structure ribbon कैसे रहता है, it will be like this, alpha helical structure बोलते हैं इसको. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सभी जगहों पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा NH. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CHR, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा NH. समझा, फिर इसका NH किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O. ऐसे करके वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है. इट इज शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसको बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, स्नेक जैसा या रिबन जैसा, ऐसे जो आड़ा टेढ़ा ऐसे रहता है, वेवी टाइप्स. इट इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, अभी बीटा प्लेटेड शीट कैसा दिखता है, बीटा प्लेटेड शीट अभी कैसे दिखाऊं मैं तुम लोग को, रुको मैं तुम लोग को ना लैपटॉप का फोटो ही दिखाती हूँ, बाद में शेयर करूंगी, पर अभी फिलहाल के लिए लैपटॉप में से देखो फोटो. ये देखो बीटा प्लेटेड शीट दिख रहा है, कैसा है स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट. कैन यू सी, CH डबल बॉन्ड O, CHR C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ऐसा शीट जैसा स्ट्रक्चर है. So it is so complicated. ये इसका open chain structure, it is beta pleated structure. ठीक है, now what they have तो said, ऊपर नीचे alpha है ना. helix. हाँ ऊपर नीचे है, करेक्ट. ठीक है, अभी ये कैसा था, ऐसा चेन है, मतलब ऐसा 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 चेन है, फिर दूसरा चेन उसमें ऐसे मर्ज हो गया. समझा, तो अल्फा हेलिक्स फॉर्म्स when the peptide chain twist into the right hand side. मतलब ट्विस्ट कैसे होता है, राइट हैंड साइड को होता है, तो इट इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. और क्लॉकवाइज स्पाइरल, स्पाइरल कैसा हुआ उसका, क्लॉकवाइज, या फिर सॉरी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा होएगा स्पाइरल. समझा, सो इट इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. अभी उसका हाइट दिया हुआ है कि जो हाइट था ना यहाँ से यहाँ तक का, दिस डिफरेंस is 3.6 amino acids, which is containing 3.6 amino acids. Hydrogen bondings are parallel. You have just seen, you can see the different hydrogen bonding. Myosin in the muscle and alpha keratin in the hair are generally showing alpha helical structure. ये आपको MCQs में पूछ सकते हैं कि alpha helical structure जो है myosin in the muscle and alpha keratin which are present in the hair are generally showing this type of secondary structure जो alpha helical structure होते हैं. ये समझा, इतना समझा क्या, बोलो बच्चों. हेलो, Yes, miss. हाँ ठीक है. Yes, miss. हाँ, थोड़ा सा तुम लोग को शायद बोरिंग भी लग सकता है, अभी मुझे पता नहीं, या फिर कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लग सकता है. अभी बीटा प्लेटेड शीट क्या होता है, the secondary structure is called as beta plated when 2 or more polypeptide chains called as strands are lined up side by side. देखो ना, एक स्ट्रैंड था, फिर दूसरा स्ट्रैंड था, फिर तीसरा स्ट्रैंड था, ऐसे एक दूसरे के नीचे 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 जमा होते गए, तो इट इज कॉल्ड एज बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, these are contains the extended strands of polypeptide chain and again these are held together by hydrogen bondings. अभी आपने स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, और क्या लिखा है इधर पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर्स बिटवीन द NH and CO, वो तो ठीक है. ओके, बीटा प्लेटेड शीट अरेंजमेंट इज फेवर्ड बाय द अमीनो एसिड इज अ स्मॉल R group.
Most of the proteins have regions of alpha helical and beta plated sheet. In addition to this, random region that cannot be characterized by either of these secondary structure. For example, spider dragline silk protein. एक प्रोटीन दिया हुआ है, बाद में पढ़ती हूँ मैं टेक्स्ट में से, डोंट वरी. स्पाइडर dragline silk protein is due to the beta plated sheet structure. It is showing sometimes elastic. ठीक है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स आर जनरली इलास्टिक. ये मैं टेक्स्ट बुक में से रीड करती हूँ, तो डोंट वरी. अभी टर्जरी स्ट्रक्चर कैसे हो गया पता है? इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर. यू कैन सी द स्ट्रक्चर. मैं बुक शेयर करूँ क्या? रुको, ज्यादा अच्छे से समझेगा ना फिर. 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. बुक शेयर किया तो कैसे आई कैन टीच यू मोर इजीली. शेयर होना बाबा. एक सेकेंड ना बच्चों, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन. स्क्रीन दिख रहा है बच्चों टेक्स्ट बुक का? Yes. Yes, miss. चलो हम लोग सही चैप्टर पे आ गए थैंकफुली, पहली बार जिंदगी में. चलो अब ये क्या था? देखो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मैंने यहाँ से पढ़ाया आपको. ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. नाउ सी प्राइमरी स्ट्रक्चर. देखो कैसे लिखा हुआ है. कैन यू सी अपर पार्ट एन टर्मिनल, ये वाला हो गया सी टर्मिनल. यू कैन सी द रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है. एला, ग्लाइ, सिरानिन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, लाइसिन. ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने यहाँ से पढ़ा था. प्राइमरी स्ट्रक्चर of protein is the sequence of constituent alpha amino acids residues linked by the peptide bonds. Any change in the sequence of the amino acid residue results into the different proteins. Primary structure of protein is represented by writing the 3-letter symbols of amino acid residue as per their sequence in the concerned protein. देखो जैसे इन लोगों ने लिखा है वैसा. ठीक है, according to the convention, the N terminal of amino acid residues are written at the left, and N terminal and C terminal will be written at the right hand side. Okay, that is about the primary structure. Next is secondary structure of proteins. What is the secondary structure? It is a 3-dimensional arrangement of the proteins. Hydrogen bonding between the NH and CO bonds can be observed. There are 2 types of secondary structure, alpha helix and beta sheeted plated. ये देखो alpha helical structure. Can you see backbone of alpha helical structure? NH, CHR, फिर C double bond O, और इसके बीच में कैसे वो कैसे हुआ coil clockwise direction में. देखो यहाँ पे लिखा है the alpha helix forms when a polypeptide chain twists into the right-handed or clockwise spiral. Some of the characteristics of alpha helical are given as follows. इसका height कितना है? 3.6 residues of amino acids. CO bond will combine with NH bond, that is point number 2, and they all are held together by hydrogen bonding. नीचे लिखा है देखो, myosin in the muscle and alpha keratin are showing alpha helical structures. देखो क्या लिखा है, in collagen, the proteins of connective tissues, the polypeptide chains have unusual left-handed helix. ठीक है, हाँ यस यस, OH और इन सबके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डेड है. यस करेक्ट, करेक्ट है दिवेश. ठीक है, ये देखो ये हो गया बीटा प्लेटेड शीट. दिख रहा है ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर. अरे ये क्या हो गया?
वो तो मैं बहुत पीछे आ गई यार, शिट। क्या फालतू है ये टेक्स्ट बुक में से शेयर करना। Okay, so what we have said, the secondary structure is called as beta plated sheet when two or more polypeptide chains called as strands line up side by side. You can see the structure. The beta plated sheet structure of the protein consists of extended strand of polypeptide chain held together by the hydrogen bonding. The characteristics of beta plated is given as follows. ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे लिंकेज है? CO and NH का लिंकेज है. There is hydrogen bonding and you are having R groups. Most proteins have region of alpha helical and beta plated sheet. In addition to that, random is also there. For example, spider dragline silk protein is stronger due to the beta plated sheet region, yet elastic due to the alpha helical region. मतलब इसमें क्या है? बीटा प्लेटेड शीट भी है और इसमें अल्फा हेलिकल भी है. तो बीटा प्लेटेड की वजह से वो स्ट्रॉन्गर है और हेलिकल की वजह से वो इलास्टिक है. समझा? सेकेंडरी वो स्ट्रक्चर. स्पाइडर के पास होता है वही है क्या ये? हाँ वही है, करेक्ट. स्पाइडर ड्रैगलाइन सिल्क प्रोटीन. ठीक है, अभी टर्जरी स्ट्रक्चर देखो. हाँ बोलो ना. हेलो. जो छोटा स्पाइडर के पास होता है वही ना? हाँ वही. अभी टर्जरी स्ट्रक्चर देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है. इसको कौन पढ़ेगा ऐसे, इतना डेंजरस. कैन यू सी द टर्जरी स्ट्रक्चर? और वो छोड़ो, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखो. प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्जरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी. तो देखो ऐसा लग रहा है पूरा धागे का गुच्छा. कैसा रहता है धागे का गुच्छा? आपस में सब मिक्स हो जाता है, वैसे स्ट्रक्चर्स बनते. तो ये बनाने के लिए नहीं आते एग्जाम में, बट दे विल आस्क यू द डिस्क्रिप्शन. इसके लिए मैं इसको ना ऐसे लिख के नहीं समझा सकती. आई हैव टू रीड, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन. अभी ये भी क्या देखो क्या लिखा है. टर्जरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, the three-dimensional shape adopted by the entire polypeptide chain of the protein is called as tertiary structure. It is a result of folding of a chain in a particular manner that the structure itself. हाँ ये chapter theoretical है, बराबर बोला दिवेश. ठीक है, folding of the chain in a particular manner that the structure itself stabilize and also has attractive interaction of the aqueous environment of the cell. The globular and the fibrous proteins represent two major molecular shapes resulting from the tertiary structure. मतलब जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है और फाइब्रस प्रोटीन्स है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ टर्जरी स्ट्रक्चर. ठीक है. The forces that stabilize them is hydrogen bonding, dipole attraction. ठीक है, due to the polar bonds. और कौन सा रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये सब एग्जाम में पूछ सकते हैं. ऑल्सो उसमें कौन सा अट्रैक्शन होता है? लंडन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स. बोलो लंडन फोर्स क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल में कोई भी एनर्जी नहीं रहेगा, कोई भी फोर्स नहीं रहेगा, तो उसमें कौन उसको सा फोर्स वैंडर वॉल रहेगा? मैंने फोर्स. हाँ यस, वैन डर वाल्स तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. लंडन फोर्स है ना, नॉन पोलर सब्सटेंस में भी रहता है. ठीक है. उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड. देखो कितने सारे बॉन्ड दिखाते हैं ये. हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, लंडन फोर्स, डाइपोल इंटरैक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड. यू कैन सी द स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लिकेटेड है. देखो कैन यू सी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स. हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है. हेलिकल स्ट्रक्चर देखो, हेलिकल स्ट्रक्चर भी मिक्स हो गया इसके अंदर, बीटा प्लेटेड भी मिक्स हो गया. तो पूरा सबका कॉम्बिनेशन मिलके क्या बन गया? टर्जरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. समझा बच्चों? प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग. क्योंकि मुझे फिर ऐसा लगेगा कि तुम लोग को बोर हो रहे हैं. बोर हो रहे हैं क्या तुम लोग को? नो मैम. नहीं ना. हाँ थोड़ा थ्योरी है, क्या करें, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते बच्चों. पर ये स्कोरिंग चैप्टर है मालूम है. एमसीक्यूज बहुत बचाता है इसका अपने को, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी जगह रहता है और डीएनए आरए तो तुम लोग को पता ही है. बेसिक तो पता है सभी को, बायोलॉजी वालों को भी, नॉन बायोलॉजी वालों को भी. तो ये काफी इजी है. ठीक है. क्या हुआ सिद्धेश, बोर हो रहा है? यस मिस किस चीज के लिए लिखा बोर हो रहा है? समझ रहा है उसके लिए यस. अच्छा समझ रहे हैं ना. ठीक है. हाँ थोड़ा बार बार एक दो बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा. मैं इसका वीडियो दिखाती हूँ अगर मुझे मिला ना यूट्यूब पे, तो आई विल शो यू वीडियो प्राइमरी सेकेंडरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का. चलो अभी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर देखो कितना डेंजरस है. when two or more polypeptide chains with folded tertiary structure come together into one protein complex, this results into the quaternary structure. मतलब बहुत सारे ऐसे जो है ना दिख रहा है स्ट्रक्चर,
4, 5, 10 मिक्स करके, मतलब पूरा एक गुच्छा. So they are called as quaternary proteins. Each individual polypeptide chain is called as subunit of overall protein. For example, hemoglobin consists of 4 subunits called as heme. Heme मतलब iron, held together by the intermolecular forces in compact three-dimensional shape. Hemoglobin can do its function of oxygen transport only when all the 4 subunits are together. देखो कितना important है कि अगर ब्लड को ऑक्सीजन पहुंचाना है हीमोग्लोबिन को, तो उसके चारों के चारों सब यूनिट्स को ज्वाइंट होना पड़ेगा. मतलब 4 टर्जरी स्ट्रक्चर आपस में मिक्स हो जाएंगे, तब जाके एक हीमोग्लोबिन को ताकत मिलेगी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की. ठीक है बच्चों, मैम ये देखो ये डायग्राम स्ट्रक्चर तो है. नहीं आएगा ना एग्जाम में? नहीं 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 नहीं, डायग्राम नहीं आएगा, डोंट वरी. ऐसे इतने खतरनाक डायग्राम है, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन पूछेंगे भर भर के. समझ गया बच्चों? पढ़ना है एक बार तो रीड कर लो, आपको आपकी मर्जी, या फिर आगे पढ़ाओ. बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलो. मजा आया कि नहीं आया वो मुझे पता नहीं, बट समझ में आया कि नहीं आया इतना बोलो. Oh shit. चलो हो गया. शुड आई प्रोसीड? इसलिए मैं ना ये चैप्टर अवॉइड करती हूँ एकदम एंड में लेने के लिए, क्योंकि एंड में लिया ना तो बच्चों को और ही नहीं समझता है. इसलिए मैं हमेशा एक चैप्टर सिखा, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर होने के बाद ये चैप्टर ले लेती हूँ, क्योंकि पढ़ने को टाइम मिलता है ना. फिर एकदम एंड में लिया तो पढ़ने को कंटाला आएगा तुम लोग को, फिर ऑप्शन में छोड़ दोगे. ऑप्शन में मत छोड़ना, ये याद रखो, घाटे का सौदा हो जाएगा. ऑप्शन में मत छोड़ना. चलो आगे बढ़े. नाउ वी विल गो फॉर, अभी नेक्स्ट पार्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. बताओ डीनेचुरेशन क्या रहता है? हम लोग जब भी खाना बनाते हैं, ठीक है, तो आपने देखा रहेगा कि जो बाहर कंट्री के लोग हैं वो लोग थोड़ा कच्चा खाते हैं, और हम लोग बहुत ज्यादा मसाला सब डाल के बनाते हैं. सो व्हेन यू आर एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, व्हाट इज एसिड? एसिड मतलब क्या हो गया? जैसे कि अपना हो गया अपना विनेगर हो गया है, कुछ ऐसे बहुत एक्सेस अमाउंट में जब हम लोग डालते हैं, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर था ना प्रोटीन्स का, देखो नीचे दिख रहा है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है. और इसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, प्रोटीन की जो क्वालिटी है, जो उसकी क्या बोलते हैं खासियत है, वो चली जाती है. इट विल डीनेचर्ड, इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली. और इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स आल्सो, व्हिच कैन नॉट बी which cannot be reversed back. मतलब एक बार आपका coiled structure proteins का खुल गया, you cannot recoil them. That is called as denaturation of protein. देखो क्या लिखा है? High temperature, acid, base, and even agitation can disrupt the non-covalent interaction responsible for a specific shape of the protein. This is called as denaturation of protein. Disruption मतलब खराब कर दिया. Denaturation is a process by which molecular shape of the protein changes without breaking the amide peptide chain that forms the primary structure. Chain नहीं टूटा, लेकिन structure open हो गया. अभी टेलीफोन का वायर है, उसको हम लोगों ने खींच खींच के लंबा कर दिया, तो वैसे प्रोटीन्स कैसे रहता है? टेलीफोन के वायर जैसा रहता है. उसको आपने लंबा कर दिया तो वो अपनी जो प्रॉपर ये है प्रॉपर्टीज है वो लूज कर देता है. देखो नीचे क्या लिखा है, ग्लोबुलर प्रोटीन, ये लिखो, डू यू नो में पढ़ रही हूँ मैं. ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर टिपिकली फोल्डेड with hydrophobic side chain. Hydrophobic matlab it does not love water in the interior and polar residues on the outside, thereby water soluble. Denaturation exposes the hydrophobic region of the globular protein and makes them water insoluble. अभी देखो क्या लिखा है, denaturation results in disturbing the secondary, tertiary or quaternary structure of the protein. This causes the changes in the properties of the protein and the biological activity is often लॉस. तो सिर्फ ऐसा होता है कि हम लोगों ने कुछ ऐसे ही खा लिया, ठीक है, पीपीटी खा लिया, उसका कुछ न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं था. आया समझ में? डीनेचुरेशन. अभी मैंने जो भी पढ़ा है मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, रिवाइज करो, कुछ वर्ड होगा जो नहीं समझा होगा तो पूछो, फिर हम लोग एंजाइम की तरफ जाते हैं. ठीक है, इट इज 8:45, 8:47 को वी विल प्रोसीड. ठीक है.
चलो हो गया पढ़ के सबका? नो डाउट्स डिफरेंस बिटवीन टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। टर्शियरी एंड क्वाटरनरी का क्या डिफरेंस है बताओ बच्चों फटाक से। दिवेश कैन यू सी दिस? देखो इधर गया रे पेज ये। See, this is tertiary structure in which you are having alpha helical structure also and beta plated structure also. दिख रहा है ये हेलिक्स जैसा ब्लू कलर का, और राइट में देखो बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू टेक टू और मोर सब यूनिट्स टुगेदर, मींस ऐसे 4-5 स्ट्रक्चर्स और ज्यादा ले लिया तो इट विल फॉर्म क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। समझा दिवेश? हेलो, Yes, ma'am. Thank you. वेलकम। चलो हो गया अभी। अभी नेक्स्ट हम लोग किधर जाएंगे? वी विल गो फॉर एंजाइम्स। अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर एंजाइम्स? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था इन्वर्टेज, Biocatalyst. माल्टेज। यस वेरी गुड। एंजाइम्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इसमें से ही पढ़ाओ चलेगा तुम लोग को? हाँ, लिख नहीं रही मैं बुक में, पूरा थ्योरी थ्योरी है। देखो क्या लिखा है एंजाइम्स। A very large number of chemical reaction takes place in our body. These are brought about at the physiological pH of 7.4 and the body temperature of 37 degrees Celsius, मतलब room temperature पर, with the help of biological catalyst called as enzymes. Okay, means these are possible due to the enzymes that pH is also maintained and our temperature is also maintained. For example, insulin, an enzyme which is secreted by the pancreas, control the blood sugar level. ठीक है, तो ये कहाँ से आया? इंसुलिन हमारे बॉडी पे रेगुलर टेम्परेचर में जनरेट होता है, ठीक है। अमाइलेज, एन एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा which is used which is help us in digestion of the food. Am I right? ठीक है। हाइड्रोलाइज the starch means it is converting into the smaller concentration. Chemically enzymes are protein. ये एक बार पता है पूछा था नीट में क्वेश्चन। Chemically enzymes are carbohydrates, proteins, vitamins क्या है? तो it is proteins. Every living cells contains at least 1,000 different types of enzymes. Most enzyme catalyst only one reaction or one group similar reaction. Thus, enzyme catalysis is highly specific. Highly specific means if the pancreas will stop secreting the insulin, that part of the body will get defected. Am I right? तो कोई और दूसरा एंजाइम उसका काम नहीं कर सकता. That is called as specific nature of an enzyme. We have learned that the mineral acids can catalyze hydrolysis of many types of compounds such as esters, acetals, and the amides, etc. In contrast, an enzyme that catalyzes hydrolysis of amide will not work into the ester or acetal. मतलब देखो क्या लिखा है कि the mineral acids can hydrolyze all these three things, but enzymes can hydrolyze only the amide but not the ester and the acetal. ये आपको पता है लॉक-इन की मैकेनिज्म एंजाइम का? मालूम है क्या? ये आपका रहा सबस्ट्रेट और ये येलो कलर का क्या है? एंजाइम। हर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होता है, ठीक है। जो बायोलॉजी वाले नहीं है शायद उनको थोड़ा पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसके पास हमेशा एक एक्टिव साइट होता है, तो दैट सबस्ट्रेट विल कम एंड गो इनटू दैट पोजीशन। तो कॉम्प्लेक्स बन गया, एंड में क्या होगा? इट विल फॉर्म अ प्रोडक्ट और वो वापस से एक्टिव साइट से बाहर निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड एज लॉक एंड की मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्शन ऑफ एन एंजाइम on substrate is described as lock and key mechanism. Accordingly, enzyme has active site on its surface. अभी देखा हम लोगों ने enzyme is having active site on its surface. A substrate molecule can attach to the active site only if it has a right size and shape. देखो जितना उसका साइज है, शेप है, उतना ही सबस्ट्रेट अगर होगा सेम डायमेंशंस का, so it will just go and attach to that surface. Once in the active site, the substrate held in the correct orientation to react and form the products of the reaction. समझा? There will be a proper orientation, they will absorb, they will form the product, and again enzyme will leave the product. ठीक है, तो enzyme will act as a catalyst. Catalyst will never take part in the reaction, they will just speed up the reaction, and at the end you will get your catalyst back. तो यहाँ पे enzyme भी हम लोगों को back मिल गया, ठीक है। The product leave the active site and the enzyme is then ready to act as a catalyst again. Formation of enzyme substrate complex has a very low activation energy. मतलब reaction बहुत fast हो गया. That is how the rate of the reaction is very, very high. Some enzymes are so efficient that the enzyme molecules can catalyze reaction of 10,000 substrate molecules in 1 second. See, these enzymes are so fast
कि 10,000 सबस्ट्रेट उसके ऊपर ज्वाइन होके प्रोडक्ट होके एकदम फास्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है. ठीक है. Several enzymes have been isolated from the organism, such as bacteria, purified, crystallized, and then amino acid sequence of many of them have been determined. In many industrial processes, specific reactions are carried out by using enzyme extracted from the organisms, and also the new enzymes can be used by using genetic engineering. अब ये सबसे ज्यादा important है. There are some industrial application of the enzymes. First is conversion of glucose to sweet tasting fructose. Glucose is not sweet in taste, but fructose is sweet in taste. तो कैसे convert करते हैं? By using the enzyme glucose isomerase. ठीक है. Next is preparation of antibiotics using penicillin by using enzyme G-acylase. ये सब आपको पूछने वाले हैं. Manufacture of laundry detergents can be done by using enzyme protease. Manufacture of esters in the cosmetics. We are using cosmetics. They are containing esters. ठीक है. तो these are nothing but genetically engineered enzymes. These are made in the laboratory. चलो. Any questions in the enzymes? Mechanism. किसी में कुछ doubt है? I will go very slow, हाँ, ताकि तुम लोग को ऐसा नहीं लगे कि थ्योरी और मिस ने बहुत फास्ट पढ़ा दिया. इसलिए मैं एकदम स्लो पढ़ा रही हूँ आप लोग को. Clear everybody? Enzymes? Yes, ma'am. Sure. जो नॉन बायोलॉजी वाले हैं वो लोग मुझे आंसर करो. बायोलॉजी वालों को तो आता रहेगा अच्छे से. ठीक है. सिद्धेश आपको बायो मैं है? समझा थोड़ा. हाँ. हाँ ठीक है. समझ में आ रहा है ना. लेकिन कैसे पता है? कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली. चलो अभी हम लोग किधर जाएंगे? न्यूक्लिक एसिड. These are genetic things. It is transferred one ancestor to the another one. ठीक है. तो it is hereditary. अभी यहाँ पे क्या लिखा है देखो. One of the most remarkable properties of the living cell is their ability to produce their replicas through thousands of the generations. Replica मतलब कार्बन कॉपी आ जाती है. ठीक है. Grandfather will look like his son will look like his grandson. तो वो पूरा similarities जो होती है, that is because of nucleic acids. It is due to the replica, formation of the replica. This becomes possible because certain type of information is passed unchanged from one generation to the next generation. Such information is called as genetic information and transfers to the new cell, which is done by the nucleic acids. ठीक है. कुछ तो मैं बोलने वाली थी. हाँ एक है ना बायो इन्फॉर्मेटिक्स करके एक कोर्स है आफ्टर आई थिंक आफ्टर योर बीएससी या फिर आफ्टर 12th भी आप देख सकते हो. खालसा कॉलेज में शायद से है बायो इन्फॉर्मेटिक्स. तो उसमें जेनेटिक कोडिंग सिखाते हैं. हाउ टू डी कोड, हाउ टू फाइंड आउट कि किसका कौन सा डीएनए है, किसके डीएनए से कौन मैच हो गया, किसके एंसेस्टर्स कौन है, किसका डैड कौन है. समझ आया? तो वो सब कैसे पता चलता है. दैट इज इन द बायो इन्फॉर्मेटिक्स. दैट इज वन फील्ड. So that you can apply for that field also. ठीक है. Now there are two types of nucleic acid. First one is RNA. Second one is DNA. What is RNA? Ribonucleic acid. And what is DNA? Deoxyribonucleic acid. D means removal. Oxy means absence of oxygen. डीऑक्सी को निकाल दिया तो राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया कि नहीं. तो डीऑक्सी मींस डीएनए में एक ऑक्सीजन कम रहता है आरएनए से. ठीक है. RNA are found mainly in the fluid of the living cell, that is in the cytoplasm, and DNA are present in the nuclei of the nucleic acid. क्योंकि सबसे important जो है that is DNA. RNA का काम क्या होता है? ट्रांसफर करना, मैसेज को स्टोर करना. ठीक है. DNA का काम क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. जो डिप्लीशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, that is because of DNA. Knowledge of structure of nucleic acid is essential to understand their biological functions. In this chapter, we are going to look at the structural aspects of the nucleic acids. Okay? So first of all, we will study here what are nucleotides. Nucleic acids are unbranched polymers of repeating monomers called as nucleotides. मतलब nucleic acid बने किससे होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं. तो न्यूक्लिक एसिड हैज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर. एम आई राइट? जैसे प्रोटीन्स किससे बना हुआ था? पेप्टाइड बॉन्ड से. वैसे ही न्यूक्लिक एसिड्स किससे बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड से. इज इट क्लियर?
This statement is clear. Proteins are made up of peptide linkages. So nucleic acids are made up of nucleotide structure, nucleotide linkages. Am I right? Please reply. Yes, miss. अभी क्या बोला है? DNA molecule contains several million types of nucleotides, while the RNA contains only few thousand. मतलब किसमें nucleotide chain ज्यादा है? That is more in the DNA and lesser in the RNA. ठीक है, you can see the structure. Sugar component of nucleic acid. ये देखो, दिख रहा है? पहला क्या है? Ribose, RNA. You can see deoxyribose, DNA. दिख रहा है? At the position number 2, वहाँ पे एक no OH group. It is absent. That is what is called as deoxyribose. Okay. The nucleotide monomer consists of 3 components. Nucleotide, nucleotide में 3 चीजें होती है. एक होता है मोनोसैकेराइड, मतलब आपका शुगर. दूसरा होगा आपका बेस. तीसरा होगा आपका फॉस्फेट ग्रुप. Nucleotide of both RNA and DNA contains 5-membered ring monosaccharide, that is furanose. दोनों में कौन सा शुगर रहता है? Furanose वाला. Often called simple sugar. ये भी पूछा था एग्जाम में. DNA and RNA contains which type of sugar? So they are containing furanose sugar. Fructofuranose generally they are using. ठीक है. In RNA the sugar component of nucleotide is D-ribose, while in the DNA it is 2-deoxyribose. ठीक है. तो आरएनए में क्या रहता है? डी राइबोस. और डीएनए में क्या रहता है? 2-deoxy डी राइबोस. इतना क्लियर हुआ? मतलब हम जब बनाएंगे अपना न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में देयर आर 3 थिंग्स. एक होगा शुगर. शुगर कौन सा? राइबोस, 5 मेंबर्ड वाला. फिर एक होगा आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस. एक बेस होगा जिसमें नाइट्रोजन होना चाहिए. और तीसरा क्या रहता है हमारे पास? फॉस्फेट ग्रुप. Total 5 nitrogen containing bases are present in the nucleic acid. These bases are cytosine, uracil and thymine. याद है? ये देखो यहाँ पे लिखा है. किसमें रहता है? डीएनए में क्या रहता है? एडेनिन एंड गुआनिन रहता ही है. साइटोसिन एंड थाइमिन रहता है डीएनए में. एम आई राइट? डीएनए में क्या क्या रहता है? देखो, 2 तरह के बेसिस हैं. एक को बोलते हैं pyrimidine, दूसरे को बोलते हैं प्यूरिन. ठीक है. What are pyrimidine? Pyrimidines are containing cytosine, uracil and thymine. pyrimidine में क्या क्या रहता है? एडेनिन एंड गुआनिन. ठीक है. अब आरएनए में क्या रहता है? डीएनए में क्या रहता है? एडेनिन, गुआनिन, उसके साथ साइटोसिन एंड थाइमिन. बराबर है. और आरएनए में क्या हो जाएगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन के जगह पर साइटोसिन रहेगा और थाइमिन की जगह पर क्या आ जाएगा? यूरासिल. एम आई राइट? Yes, ma'am. है ना? ठीक है. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. क्या रहता है? एडेनिन एंड गुआनिन, प्यूरिन्स और ये हो गया. ठीक है. यूरासिल ऑकर्स इन आरएनए व्हाइल थाइमिन ऑकर्स इन डीएनए. मतलब ए डी. देखो, डीएनए में क्या आएगा? ए जी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, मतलब सीटी. ए जी सी टी किस में रहेगा? डीएनए में. ए जी सी यू किस में रहेगा? आरएनए में. आया समझ में? आरएनए में क्या रहता है? ए जी सी टी. ओके. उल्टा बोला क्या मैंने? सॉरी. डीएनए में क्या रहेगा? ए जी सी टी. और आरएनए में क्या रहेगा? ए जी सी यू. ठीक है. गेटिंग और नॉट बच्चों? ये चैप्टर हो ही जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे. नहीं रे, नहीं होएगा. एक और छोटा हो लेक्चर जाए. लगेगा. हो जाएगा. देखते, आधा घंटा है. अभी न्यूक्लियोसाइड क्या रहता है? वो न्यूक्लियोटाइड था. न्यूक्लियोसाइड में क्या रहता है? देखो, nucleoside is formed by joining the anomeric carbon of furanose with the nitrogen of the base. While numbering the atoms of the nucleoside, primes dash are used for the furanose numbering, distinguished from the atoms of the base. With pyrimidine bases, nitrogen atom at the 1 position bonds with the 1 dash of the carbon sugar, while the purine base, वो छोड़ो, ये देखो स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं तुम लोगों को. किधर गया? डी इसका किधर गया स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर ही नहीं दिया न्यूक्लियोसाइड का. सी इन शॉर्ट व्हाट दे हैव सेड इन द न्यूक्लियोसाइड, दे आर कंटेनिंग फॉस्फेट ग्रुप और शुगर रहता है उसमें. ठीक है. और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहता है? शुगर, फिर अपना बेस और फॉस्फेट. इसमें क्या रहता है? शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, बस. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग द फॉस्फेट ग्रुप्स टू द 5th OH atom of the nucleoside.
The nucleosides are monophosphate of the nucleoside, abridged name of some nucleoside, that is AMP, DAMP, UMP, DTMP and so on. ठीक है? Here the first capital letter is derived from the corresponding base. और आगे क्या बोला है इधर पे देखो, MP stands for monophosphate. Small letter D is the beginning, indicates the deoxyribose in the nucleotide. आया समझ में? क्या बोला है? कैपिटल लेटर जो पहला वाला है that will indicate the base. और जो MP लिखा है वो मोनोफॉस्फेट है, और स्मॉल d क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट दैट इट इज डीऑक्सीराइबोज इन द न्यूक्लियोसाइड. समझा? ये देखो स्ट्रक्चर, डी राइबोज, साइटोसिन, राइबो न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड में क्या है देखो, एक बेस दिख रहा है NH2 वाला, दिखा क्या? और एक फॉस्फेट दिख रहा है, सॉरी शुगर दिख रहा है. तो बेस और शुगर क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड. और इसमें देखो बेस शुगर है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है. और अगर तीनों चीजें हुई, बेस शुगर और फॉस्फेट तीनों हो गया, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड. समझ रहे हैं सबको? ऐसे क्यों लग रहा है तुम लोगों को सब ऊपर से जा रहा है? हेलो, Yes. क्या ये ऊपर से जा रहा है? हाँ मैम मतलब क्या बोले? देखो मैंने क्या बोला, अभी रुको. हाँ मैं पेज है ना अनशेयर करती हूँ, रुको ठहरो, वापस से चाहिए तो शेयर करती हूँ. देखो मैंने क्या बताया, अपने पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड है. देखो अभी ध्यान से देखो, न्यूक्लिक एसिड. श्री बाबा मेरा क्या है, फोन है ना एकदम डब्बा हो गया है, फेंकना पड़ेगा. वी हैव न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के. एक होता है DNA, एक होता है RNA. बराबर है? अभी DNA और RNA जो है, अभी ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, वो किससे बना हुआ रहता है? इट इज मेड अप ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड लिंकेज. अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जैसे पेप्टाइड चेन था बहुत सारा, तो वैसे न्यूक्लियोटाइड चेन में क्या क्या रहता है? एक बेस रहता है, एक शुगर रहता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है, ठीक है. उसी तरह से एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहता, इट इज कंटेनिंग ओनली बेस एंड शुगर. अभी कंफ्यूजन है कोई इन दोनों में? न्यूक्लिक एसिड नहीं बना मैम अभी किससे है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से. बराबर? इसमें क्या क्या रहेगा बच्चों? बेस रहेगा, शुगर रहेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप रहेगा. और न्यूक्लियोसाइड में क्या रहेगा? सिर्फ बेस और शुगर रहेगा. अब शुगर कौन सा रहता है? जनरली मैंने बताया फ्यूरानोस शुगर रहता है. बराबर? हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा शुगर यूज किया था? राइबोज शुगर यूज किया था. इतना क्लियर? अब देखो DNA में क्या रहता है? अभी 2 तरह के बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन, ठीक है. प्यूरिन में क्या क्या रहता है? यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन. पिरिमिडिन में क्या रहता है? एडेनिन एंड गुआनिन. तो जब मैं DNA की बात करूंगी ना, तो DNA में क्या क्या जाएगा पता है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन. और RNA में क्या जाएगा? थाइमिन बराबर बोला ना? हाँ. और RNA में क्या जाएगा? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन की जगह जाएगा यूरासिल, और जाएगा अपने पास साइटोसिन. अभी समझा? तो ये DNA और हाँ RNA एक दूसरे से अलग हो गए, कैसे पता चला? अगर मेरे पास थाइमिन है तो वो DNA है, यूरासिल है तो वो RNA है. अभी क्लियर? हाँ Yes, यस ma'am. यस. अभी नीचे पक्का 10th अच्छे को से था समझ? हम लोग को. हाँ 10th को था. और ये डिकोडिंग होता है ना, A हमेशा G के साथ जाता है, T हमेशा किसके साथ जाता है रे? C के साथ जाता है. ठीक है. फिर वापस से A G के साथ जाता है और T U के साथ जाता है. अगर वो RNA हुआ तो ये DNA हुआ, तो समझा? तो इस तरह से वो कोडिंग्स निकालते हैं. अभी समझ आया थोड़ा थोड़ा? हाँ मैम अभी समझ. हाँ. फिर अभी क्या बताया मैंने इसके बाद? दैट DNA, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस खत्म हो गया. अभी समझ में आया? न्यूक्लियोटाइड में क्या रहेगा? बेस, शुगर एंड फॉस्फेट. बेस कौन सा भी रह सकता है इन पांचों में से, 1 2 3 4 5, ठीक है. और शुगर क्या रहेगा? राइबोज और फॉस्फेट ग्रुप. न्यूक्लियोटाइड में, सॉरी न्यूक्लियोसाइड में क्या रहेगा? एक बेस रहेगा इन पांचों में से, और एक शुगर रहेगा जो अपना रहता है डी राइबोज. अभी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से? हाँ मैम. ठीक है. और उन्होंने बताया है कि जब हम लोग ऐसे लिखते हैं न्यूक्लियोसाइड, तो उसको कैसे लिखा जाता है? AMP, DAMP. तो जो ए है ना बच्चों, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये एडेनिन है, एडेनिन बेस है. ए से क्या आया? एडेनिन आया ना.
MP मतलब मोनोफॉस्फेट आ गया, इधर पे भी मोनोफॉस्फेट आ गया। अब अगर मैंने D लिखा तो ये DNA वाला है, डीऑक्सीराइबो। और अगर मैंने नहीं अच्छा, लिखा तो वो RNA वाला है। अभी समझा? हाँ मैं वापिस समझा। हाँ ठीक है, वो अगर टेक्स्ट बुक में मुझे GMP लगा। रहेगा तो गुआनिन रहेगा ना। हाँ करेक्ट, अगर GMP रहा, DGMP, चलो ऐसा लिखा तो गुआनिन आ गया। ठीक है, अभी एक और दिया है, देखो इधर पे बताती हूँ, रुको। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? DTMP लिखा हुआ है, चलो DTMP तो क्या है? थाइमिन, मोनोफॉस्फेट, और D मतलब DNA वाला, डीऑक्सीराइबो। समझा बच्चों? अभी मैंने यहाँ पे लिखा UMP, तो यूरासिल मोनोफॉस्फेट। तो अगर यूरासिल है तो बट ऑब्वियस है वो RNA ही रहेगा ना, क्योंकि RNA में क्या रहता है? यूरासिल रहता है, थायमिन नहीं रहता है। तो अभी क्लियर? तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड को लिखा जाता है। अभी बोलो, कुछ डाउट है किसी को? नहीं अभी मिस तो वो न्यूक्लिक हम्म एसिड और ये पॉली न्यू, न्यू ये अपना वो ऊपर था ना मिस, हम्म तो उसमें ये मिस वाला क्या रिलेशन है? किसमें? इसमें रिलेशन ये है कि मेरा जो न्यूक्लिक एसिड है वो बना हुआ है किससे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है ना। जैसे मैंने क्या बोला कि अगर मैंने कपड़ा बनाया तो कपड़ा बना किससे है? धागे से बना है। तो वैसे ही मेरा न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA RNA बने किससे हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहता है अपने, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या रहता है? बेस, शुगर एंड फॉस्फेट रहता है। फिर ये न्यूक्लियोसाइड जो है वो ये बताता है कि इट इज DNA और इट इज RNA। ओके। समझा? अभी यहाँ पे ना नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर। अरे बाबा, ये स्ट्रक्चर मुझे तुम लोगों को दिखाना ही पड़ेगा। शेयर करूँ क्या स्क्रीन वापस से? बहुत पका है रे हाँ स्क्रीन करो शेयर करो। करना। अभी समझा ना? अभी कुछ डाउट नहीं है? ये याद रखना, भूलना नहीं। 2 मिनट रुको, शेयर करती हूँ। इसके बाद जो चैप्टर है ना पॉलीमर, वो बहुत ऐसे तुम लोग को अच्छा लगेगा। इजी है वो। ये भी इजी है थोड़ा सा। थ्योरी है, अभी कैसे तुम लोगों को आदत नहीं है ना इतना थ्योरी का, थोड़ा कंटाला आता होगा। वाह वाह, सही पेज खोला मैंने, सही। चलो ये समझ आ गया अभी। DNA RNA, अभी देखो, अभी समझ में आएगा अच्छे से। ये DNA और RNA का स्ट्रक्चर है, ये आपके बेसिस है। ठीक है, पिरिमिडिन एंड प्यूरिन। अरे मैंने उल्टा लिख दिया था, पिरिमिडिन में UG, सॉरी, CUT आता है, और इसमें एडेनिन और गुआनिन आता है। ठीक है, देन आफ्टर दैट अभी देखो इधर पे आ गया राइबो न्यूक्लियोसाइड। तो एक बेस है, ऊपर दिख रहा है बेस, बेंजीन रिंग जैसा, और नीचे वाला क्या है? शुगर है। और डीऑक्सी में क्या है? देखो, ऊपर वाला बेस है और नीचे वाला शुगर है। DCMP मतलब क्या हो गया बोलो? डीऑक्सी, फिर C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन, MP स्टैंड्स फॉर मोनोसैकेराइड, सॉरी, मोनोफॉस्फेट। समझा अभी? यस। चलो नाउ नेक्स्ट विल गो फॉर, देखो यहाँ पे क्या पूछा है ऊपर, डी राइबोज एंड गुआनिन का फॉर्मूला क्या आएगा? नहीं नहीं, स्ट्रक्चर याद नहीं करने के, डोंट वरी। खाली ना ये स्ट्रक्चर पूछते हैं, कौन सा वाला पता है? रुको, ये प्यूरिन और पिरिमिडिन का पढ़ लेना, ये तो आता है एग्जाम में, तो ये जरूर से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे इतना पूछते नहीं है। चलो ना वी विल डू, अभी यहाँ पे इसका आंसर करो, डी राइबोज एंड गुआनिन क्या आएगा उसका फॉर्मूला? गुआनिन मतलब G, और RNA, तो क्या लिखेंगे उधर? GMP। GMP, करेक्ट। और अभी D2 डीऑक्सीराइबोज एंड थायमिन, तो डीऑक्सीराइबो बोला है ना, तो DTMP। यस और नो? D मतलब डीऑक्सीराइबो, T स्टैंड्स फॉर थायमिन, और दूसरा क्या आ गया? मोनोफॉस्फेट। समझा? हाँ चलो अभी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स बोथ DNA एंड RNA आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी समझा यश? मतलब DNA और RNA बने किससे हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। कैसे यस फॉर्म हो गया वो? OH ग्रुप ज्वाइन होता है न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट के साथ, और वो बनाते हैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड। टू एंड्स ऑफ द पॉली, अभी तुम लोग को ना ऐसे पढ़ के नहीं समझेगा, ये स्ट्रक्चर देखो हाउ इट इज फॉर्मिंग। You can see DCMP, deoxycytosine monophosphate, is combining with deoxy and adenine
मोनोफॉस्फेट। अपने को कौन सा स्ट्रक्चर मिल गया यहाँ पे, कैसे एंड ज्वाइन हो गया, 5 डैश दिख रहा है इधर, 5 डैश इज ज्वाइनिंग विद 3 डैश। तो इस तरह से उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो क्या लिखा है इधर पे, अभी पढ़ो। 5 dash phosphate or another nucleotide. Two ends of the polynucleotide chain are distinct from each other, one end having free phosphate group at the 5th position, and that is called as 5 dash end, and the another end is having OH group, which is at the 3rd position. The polynucleotide structure of nucleic acid can be represented schematically in the figure अभी दिखा दिया, ठीक है। What is the primary structure of nucleic acid? पढ़ो। The primary structure of nucleic acid is a sequence of nucleotide in it. This is in turn is determined by the identity of the bases in the nucleotides. Different nucleic acids have distinct primary structure. It is a sequence of base in DNA which carries the genetic information of the organism. The polynucleotide chain of the nucleic acid are named by the sequence of the bases beginning at the 5 dash end using the one letter symbol of the bases. फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी हमने किया ना वही है, समझा क्या। DCMP, DAMP, फिर फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेज बन गया इधर पे, दिख रहा है। देखो इधर नीचे दिया हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। दिख रहा है फॉस्फेट 5 डैश शुगर बेस, फिर फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस, दिखा। तो ऐसे पॉली चेन बनते जाता है, समझा क्या। हाँ मैम। ये तो अभी नीचे का तो डायग्राम है, ये शायद लास्ट पेज है चैप्टर का। चलो मैं खत्म ही कर देती हूँ। CATG means there are 4 nucleotides. CB है साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन एंड गुआनिन। 4 हो गया कि नहीं, है ना। अभी DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये देखो DNA का स्ट्रक्चर तो सभी को पता होगा। सिंगल हाँ चेन रहता है ना रिबन जैसा, तो इट इज कॉल्ड एज RNA। डबल चेन रहता है तो इट इज कॉल्ड एज DNA। देखो क्या लिखा है, जेम्स वॉटसन एंड द Francis Crick put forth in the year 1953 a double helical structure of DNA, which was later verified by the electron microscope. Salient features are given. It is right-handed double helical structure. Right-handed मतलब दो रिबन को आपने क्लॉकवाइज घुमा के फोल्ड किया है, ठीक है। उसके क्या बाद क्या बोला है, कैसा अटैच्ड हुआ है, 5 डैश एंड अटैच्ड हुआ है 3 डैश एंड से, 3 डैश एंड अटैच्ड हुआ है 5 डैश एंड से। देखो दिख रहा है ऊपर का, देखो 3rd डिग्री 5 डिग्री, नीचे दिखा 3rd डिग्री 5 डिग्री। तो कैसे किया, अभी सपोज आपके ऊपर A लिखा हुआ है और नीचे B लिखा हुआ है, तो मैं कैसे ज्वाइन करूंगी, दूसरे रिंग का A ऊपर पकड़ू, B ऊपर पकड़ूंगी और A नीचे पकड़ूंगी और उसको फोल्ड करूंगी। आ रहा है समझ में। हेलो, क्या मैम, समझा नहीं। हाँ देखो मैं मैंने क्या समझा। बोला, एक रिबन है अपने पास, ठीक है। उस रिबन के ऊपर वाले पार्ट को A पकड़ा, नीचे वाले पार्ट को B पकड़ा। अभी जो दूसरा रिबन है उसके ऊपर वाले पार्ट को B पकड़ेंगे, नीचे वाले पार्ट को A पकड़ेंगे और दोनों को ऐसे कॉइल्ड कर देंगे, तो आपका बन जाएगा DNA। अच्छा, मतलब एक सीधा तो दूसरा उल्टा। हाँ एक सीधा तो दूसरा उल्टा, जैसे हम लोग ये लगाते हैं, देखो ना यहाँ पे 3 and 5 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट ऑब्वियस है दिस गिव्स टू द लैडर लाइक स्ट्रक्चर टू द DNA। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, लैडर जैसे सीढ़ियों जैसे बन गया, AT CG GC GC AT TA दिख रहा है, तो इट इज फॉर्मिंग अ लैडर, जैसे सीढ़ियां हैं। Adenine always forms 2 hydrogen bond with the thymine and guanine forms 3 hydrogen bonds with the cytosine। ये याद रखना, क्या बोला है यहाँ पे, एडेनिन हाइड्रोजन के साथ एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एंड क्या बोला था दूसरा, गुआनिन गुआ एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये याद रखना, भूलना ही नहीं। दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, है ना, क्योंकि ए के साथ हमेशा टी जाता है, जी के साथ हमेशा यू जाता है, तो किसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, AT के बीच में, और GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द RNA एग्जिस्ट इन द सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये तो तुम लोग को पता है। और ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त। बहुत कम कर दिया पता है, लास्ट इसमें था विटामिन था, लिपिड्स था, प्रोटीन था, एंजाइम्स था, हार्मोन्स था, सब निकाल दिया। किसी को कुछ डाउट है इस चैप्टर में, प्लीज जस्ट गो थ्रू सी दिस चैप्टर। कुछ नहीं समझा होगा तो मुझे पूछो। RNA DNA न्यूक्लिक एसिड में तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ रहेगा,
वो पढ़ो एक एक, वैसे तो मैंने एक एक लाइन ही पढ़ा है, फिर भी आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। आज मैं 5 मिनट आपको जल्दी छोड़ दूंगी। तुम लोग कंटिन्यूसली बैठे ना 7 बजे से, 7 बजे से बैठे हो ना तुम लोग लेक्चर में? हाँ मैम। हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट जल्दी छोड़ती हूँ। कुछ नहीं समझा है तो पूछो, इजी है चैप्टर, खाली 2-3 बार पढ़ोगे ना आ जाएगा। चलो अच्छा है, कल मैं नया चैप्टर चालू करती हूँ। कौन सा पढ़ाऊँ, पॉलीमर्स पढ़ाऊँ? हाँ इसके पढ़ा दो। बाद वाला पढ़ाती हूँ, पॉलीमर्स पढ़ा देती हूँ, इजी है वो बहुत। मतलब उसमें तुम मिस लोग को वो भी लिखने इसके का है। जैसा ही है। नहीं नहीं नहीं, इसके जैसा नहीं है। उसमें ना क्या पढ़ाऊंगी पता है क्या, कि पॉलीथीन कैसे बनता है, फिर हम लोग जो आर्टिफिशियल ये लेते हैं ना ब्लैंकेट्स, वो कैसे बनता है, मेलामाइन के जो हम लोग बर्तन यूज करते हैं वो कैसे बनता है, नायलॉन कैसे बनता है, नायलॉन की रस्सियां कैसे बनती है, कपड़े कैसे बनते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े कैसे बनते हैं, तो ये सब पॉलीमर्स है ना, जो अपने डे टू डे लाइफ में यूज होता है। ठीक है, पॉलीथीन भी 2 टाइप का होता है, एक होता है हाई डेंसिटी, एक होता है लो डेंसिटी। प्लास्टिक देखो, एक नरम प्लास्टिक होती है जो झिल्ली होती है, प्लास्टिक की थैलियां हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा प्लास्टिक होता है अपना टपरवेयर वाला। तो वो कैसे बनता है, व्हाट आर द यूजेस, तो उसके रिएक्शंस है, उसके यूजेस है, तो यू विल एंजॉय दैट चैप्टर। मतलब वो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं ना, तो तुम लोग को अच्छा लगा। अभी डीएनए आरएनए कैसे देखा नहीं है तो फिर नैनो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी इज बेसिकली बेस्ड अपॉन दी वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, तो जो होता है 1 × 10⁻⁹। ठीक है, एंड दैट इज यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ दी कंपाउंड्स। और जो नैनो पार्टिकल होता है उसका जो साइज होता है, इट इज 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द ह्यूमन हेयर। सोचो कितना बारीक रहेगा। एंड ऑलवेज इट इज डिफरिंग इनटू द कलर ऑल्सो। जब आप गोल्ड का नैनो पार्टिकल लोगे तो वो आपको रेड कलर का दिखता है। नैनो पार्टिकल मतलब सोचो बाल से 10,000 गुना छोटा, अपने एक सिंगल बाल से 10,000 गुना छोटा, तो वो दिखता है रेड कलर का। पर जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे, क्लस्टर बनोगे, तो अपना जो मेन गोल्ड है वो कौन सा कलर का दिखता है, येलो कलर का दिखता है। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी यू कैन मेक सो मेनी मेडिसिन ऑल्सो। जैसे नैनो कार था, तो नैनो कार में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी यूज हुआ। तो वो एक, अब तुम लोग का लास्ट चैप्टर है ये, ग्रीन केमिस्ट्री, उसमें मिल जाएगा सब। नैनो टेक्नोलॉजी के मैं यूजेस का ना वीडियो दिखाऊंगी तुम लोग को। एक है ना यूट्यूब पे वीडियो है, एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, दिवेश, वो देखना। अभी नैनो टेक्नोलॉजी से ना ऐसे शर्ट्स बनाए गए हैं जो टेयर फ्री है, मतलब फट गया थोड़ी देर के बाद वो केमिकल्स बाहर आएगा और वो शर्ट आपको ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है। ज्यादा महंगा नहीं है, मार्केट में है 2,000-3,000 का शर्ट है। ठीक है, तो अपनी जो गाड़ियों की सीट होती है वो ठंडी क्यों होती है, हम लोग कैसे गाड़ी को धूप में खड़ा रखते हैं, लेकिन अंदर जाता है तो थोड़ा ठंडा रहता है ना, कार वगैरह का। तो दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। तो आप लोग पढ़ना वो, मतलब वो एक यूट्यूब पे एक वीडियो है, एकदम सिंपल सा वीडियो है। खाली यूट्यूब पर डालोगे ना एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, आप लोग को बहुत सारा ऐसे वीडियो मिलेगा। एक बहुत अच्छा वीडियो, एक साइंटिस्ट कुछ तो बताता है, वो देखना। नैनो कार, नैनो मटेरियल्स, नैनो ट्यूब्स, वो सब। फिर भी कुछ नहीं समझेगा तो मुझे बोलना, मैं कल दिखाती हूँ वीडियो, ठीक है? अभी कल अपना मॉर्निंग में लेक्चर है जो मैं नया चैप्टर सिखाऊंगी पॉलीमर्स, और इवनिंग में अपना रिवीजन लेक्चर है। तो तुम लोगों ने मुझे बोला था यू आर गोइंग टू डू क्या, थर्मोडायनेमिक्स वाला है ना, फर्स्ट लॉ जो पे। फर्स्ट लॉ तक। हाँ हाँ, पढ़ो, हाँ रीड करो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बाय हार्ट करो, रीड करो। और न्यूमेरिकल्स पढ़ो जितना सिखाया है, तो उसमें कुछ डाउट रहेगा तो वी विल डिस्कस। कितने बजे रखूँ लेक्चर? शाम को अगर फिजिक्स का लेक्चर रहेगा तो लेट ही हो जाएगा, 7:30 बजे रखूँ, 7:30 से 8:30, एक ही घंटा। हाँ मिस। ठीक है, चलो। चलो आज मैं तुम लोग को 4 मिनट जल्दी छोड़ देती हूँ, ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस चैप्टर। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज फील फ्री टू आस्क। बट क्वेश्चन पूछने का हक उन्हीं को है जो लोग लेक्चर बैठते हैं। हाँ, जो लोग लेक्चर नहीं बैठते फिर मुझे को पूछेंगे मिस ये डाउट वो डाउट, तो फिर मेरा दिमाग घटेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी तरफ से दो, क्योंकि हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा सिखाएं ऑनलाइन भी, आप लोग को बोर नहीं हो। वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग अलॉट, तो प्लीज। एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग अभी अच्छा रिस्पॉन्स देते हो। चलो अभी हम लोग कल है ना ये वाला मस्त वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री को बताती हूँ तुम लोग को मैं। ये देखो नायलॉन के रस्सियाँ, बॉटल्स कैसे बनता है ये मालूम है, यूज होता है देखो, थर्मोसेटिंग। हम लोग कंघी यूज करते हैं ना, कंघी वो कैसे बनाते हैं,
फिर हम लोग कुकर का है वो किससे बना हुआ होता है, तो वो सब तुम लोग को आइडिया आ जाएगा, तो तुम लोग फिर बाहर जाके बोल सकते हो अरे ये देखो यहाँ पे कुकर लिखा हुआ, कुकर बना है कि नहीं, टेफ्लॉन का कोटिंग होता है उसके ऊपर, तो वो क्या रहता है हाँ केमिकली, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। वो 10th में भी था। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है वो। हाँ मैं मिस, वो टेफ्लॉन का था। हाँ 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 बराबर, लास्ट में था मिस वो कार पे, टेफ्लॉन वाला, मिस वो कार बराबर पे होता है बराबर। ना वो। हाँ वो भी कार पे पूरा। कोटिंग टेफ्लॉन। होता है, यस यस करेक्ट, वही है वही है। तो थोड़ा हम लोग खाली रिएक्शंस के साथ पढ़ेंगे। अभी मेलामाइन के हम लोग बर्तन यूज करते हैं ना, मॉल में जाएंगे तो सब जगह मेलामाइन की क्रॉकरीज ही मिलती है। तो कैसे बनती है वो क्रॉकरीज, इट इज अ पॉलीमर। टॉयज कैसे बनते हैं, तो आप लोग वो रीड करोगे पढ़ोगे। अभी पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप्स हम लोग यूज करते हैं, पानी के जो पाइप्स है ग्रीन कलर के, नियॉन कलर्स के, वो सब क्या है, पॉलीमर है। तो कैसे बनते हैं, क्या रिएक्शन है, सिंपल है, एक एक लाइन का रिएक्शन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर आप पढ़ोगे कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या है, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बनाया, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाया। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स मतलब वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत अच्छा चैप्टर है वो, यू विल एंजॉय। इसे थ्योरी नहीं है, उसमें थोड़ा लिखने का भी है, रिएक्शन और वो सब। ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय, यस। वेलकम, बाय बाय, एंड करती हूँ हाँ?